السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج میں شب معراج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو شب معراج کا واقعہ گزرا ہے اس کی آج میں چیپٹر کی میں آج پڑھنے جا رہی ہوں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کا ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ بنی اسرائیل سورہ کا لفظی معنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جب مکہ نخل اسلام کی نشو و نما کے لیے ثابت ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا تاکہ اس کی کاشت کے لیے کسی دوسری سرزمین کا انتظام کیا جائے، لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں اس کے زندہ رہنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ مکہ نے تو البتہ کچھ برگ و ثمر پیش کیے تھے، مگر طائف سے تو یہ بھی نہ ہو سکا کہ اسے ایک لمحہ کے لیے بھی قبول کر سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یاس انگیز اور دل دوز سلوک سے بے حد متاثر ہوئے اور رنج و الم کی کسک بڑھنے لگی۔ طائف سے واپسی گویا کامیابی اور پریشانیوں کی انتہا تھی۔ حق و باطل کی اس کشمکش میں باطل کا زور اپنے عروج تک پہنچ چکا تھا۔ دائی حق کو اس قدر پریشان کیا گیا تھا کہ اب باطل کی ترکش میں ظلم و ستم کے تیروں کا ذخیرہ ایک ایک کر کے ختم ہو چکا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل کا ایک ایک وار سہتے رہے تھے۔ اس لیے اب نصرت الہی کا دور دلکشا کھلنے کا وقت آ گیا تھا۔ خود اللہ جل شانہ نے ایسے ہی موقع پر یہ بشارت دی ہے۔ ان کو کٹھنائی اور مصیبت نے آ لیا اور وہ خوب جھڑجھڑا گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اس مرحلے میں پہنچ کر ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ سنو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب نصرت الہی کا دروازہ کھلنے اور کامیابی و کامرانی کی بشارت ملنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس مبارک تقریب کے لیے 27 رجب 10 باس دوشنبہ کی رات کو منتخب کر لیا گیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خالق اکبر کی نمائندگی کرتے ہوئے 12 سال تک اس قدر مصائب برداشت کیے ہیں، وہ انہیں اپنے دربار میں بلوا کر اعزاز و اکرام سے نوازے اور معراج کا وہ مرصع تاج ان کے سر پر رکھے جس سے تاریخ انسانی میں انبیاء کرام سمیت اب تک کسی کا سر مزین نہ ہوا تھا، اور ان حقیقت کا یہ بچشم خود نہایت قریب سے ملاحظہ کرائے، جن کی تبلیغ وہ صالح سال سے کر رہے تھے اور آئندہ بھی کرنی تھی۔ شعب ابی طالب رات کی تاریکی میں مستور ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبوت کے آفتاب عالمتاب اور خاندان بنو ہاشم نے کئی سال سخت اذیت میں گزارے تھے۔ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں اور اپنی ام ذات بہن ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں نماز عشاء کے بعد محوِ استراحت ہیں۔ ابھی رات کا کچھ ہی حصہ گزرا ہے، سب لوگ خواب غفلت میں ہیں۔ اتنے میں مکان کی چھت شک ہوتی ہے اور جبرائیل امین اندر داخل ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ہیں اور جبرائیل امین انہیں نیندی کی حالت میں اٹھا کر مسجد حرام میں لے آتے ہیں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم خفتہ اور نیم بیداری کے عالم میں چاہے زمزم کے پاس ہیں۔ جبرائیل امین نے ان کا سینہ مبارک چاک کیا، زمزم کے پانی سے دھویا
अलमबरदारी, दानाई और ईमान व यकीन से भरकर दोबारा ठीक कर दिया। अब उसके बाद सफ़ेद रंग का एक जानवर जिसका कद गधे से बड़ा और खच्चर से कुछ छोटा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवारी के लिए पेश करते हैं। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर सवार हो जाइए। वह बुर्राक है, उसका हर कदम हद निगाह पर पड़ता है और उसी बर्क रफ्तारी की वजह से उसे बुर्राक कहलाता है। पहले अंबिया कराम भी इसी नौइयत के सफ़र में इस सवारी पर जाया करते थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होने लगे तो वह शोखी दिखाने लगा। उस पर जिब्राइल अमीन ने उसे थपकी देते हुए कहा, देख क्या करता है, आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान तुझ पर सवार नहीं हुआ है। यह सुनकर वह शर्मिंदगी से पसीना पसीना हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हैं, जिब्राइल अमीन उनके साथ हैं। उनकी पहली मंजिल मदीना है। यहाँ दोनों सवार उतरे, नमाज पढ़ी और चल दिए। जिब्राइल अमीन ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हिजरत करके इसी जगह आएंगे। दूसरी मंजिल तूरे सीना थी, जहाँ अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ था। यहाँ भी शजरे तूर के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ी। तीसरी मंजिल बैतुल लहम थी, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 गाना नमाज पढ़ी। इसी सफ़र के दौरान एक जगह किसी ने पुकार कर कहा, इधर आओ, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतालिक तवज्जो न की। जिब्राइल अमीन ने बताया कि यह यहूदियत की तरफ बुला रहा है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इधर आओ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ भी मुल्तफित न हुए। जिब्राइल अमीन ने कहा, यह ईसाइयत की तरफ बुला रहा है। फिर एक औरत नहायत ही बनी संवरी नज़र आई और उसने अपनी तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी नज़र फेर ली। जिब्राइल अमीन ने कहा, यह दुनिया थी। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्राइल अमीन ने कहा, यह दुनिया की बाकी मानदा उम्र की अंदाज़ा में औरत की बाकी मानदा उम्र से कर लीजिए। फिर एक शख्स मिला जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी छोड़कर आगे बढ़ गए। जिब्राइल अमीन ने बताया कि यह शैतान था जो आपको रास्ते से हटाना चाहता था। इस सफ़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुर्म व ख़ता और गुनाह की सज़ा के बाज़ हकीकतें मुतमश्शिल करके दिखाई गई और उसकी तफसीली मुशाहिदे का मौका दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं, मगर जितनी काटते जाते हैं वह उतनी ही बढ़ती जाती है। पूछा, यह कौन लोग हैं? कहा गया, यह खुदा की राह में जहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा, कौन है? कहा गया, यह वह लोग हैं जिनकी सरगर्दानी नमाज के लिए उठने नहीं देती थी। कुछ और लोग देखे जिनके कपड़े में आगे पीछे पेवंद लगे हुए हैं और वह जानवरों की तरह घास चर रहे हैं। पूछा, यह कौन है? बताया गया, यह वह हैं जो अपने माल में से ज़कात व खैरात नहीं देते थे। फिर एक आदमी को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उसे उठाने की कोशिश करता है और जब वह नहीं उठता तो उसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। पूछा, यह कौन अहमक है? कहा गया, यह वह शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा न सकता था, मगर यह उनकी कम करने की बजाय और ज़्यादा जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर लादे चला जाता था। फिर देखा कि कुछ लोगों की ज़बानें और होंठ कैंचियों से कुतरे जा रहे हैं। पूछा, यह कौन है? कहा गया, यह गैर ज़िम्मेदार मुकर्रिर हैं जो बेतकल्लुफ़ ज़बान चलाते और फितना बर्पा करते थे। एक और जगह देखी जहाँ एक पत्थर
में ज़रा सा शगाफ हुआ और उसमें से एक बड़ा मोटा बैल निकल आया और फिर वह बैल उसी शगाफ में वापस जाने की कोशिश करने लगा मगर न जा सका। पूछा, यह क्या मामला है? कहा गया, यह उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज़ बात कर जाता है मगर नादिम होकर उसकी तलाफ़ी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। एक और मकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा, यह कौन है? कहा गया, यह दूसरों पर ज़बाने तान दराज करते थे। उन्होंने करीब कुछ और लोग थे उन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वह अपने मुंह पर सीने नोच रहे थे वह अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा, यह कौन है? कहा गया, यह वह लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते थे और उनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊँटों के मुशाबा थे और वह आग खा रहे थे। पूछा, यह कौन है? कहा गया, यह यतीमों का माल हजम करते थे। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं। आने वाले उनके रौंदते हुए गुजरते हैं मगर वह अपनी जगह से नहीं हिल सकते। पूछा, यह कौन है? कहा गया, यह सूदखोर हैं। फिर कुछ और लोग नज़र आए जिनकी एक जानिब नफीस चिकना गोश्त रखा था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त जिससे सख्त बदबू आ रही थी और अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा, यह कौन है? कहा गया, यह वह मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शौहरों के होते हुए हराम से अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी की। फिर देखा कुछ औरतें अपनी छातियों के बल लटक रही हैं। पूछा, यह कौन है? कहा गया, यह वह औरतें हैं जिन्होंने अपने शौहर के सर ऐसे बच्चे मंड दिए जो उनके न थे। तो ये है अभी वाक़या और आगे भी दूसरे पार्ट में मैं फिर अभी अपलोड करूँगी इंशाअल्लाह ताला।